پاکستان کی عدالتی تاریخ کا تاریخ ساز دن، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی درخواستوں کی سماعت براہ راست نشر، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 15 ججز پر مشتمل فل کورٹ نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت عظمیٰ میں مقدمات کیسے سنے جاتے ہیں، قوم نے پہلی بار دیکھا۔ طویل سماعت کے دوران 2 بار وقفہ ہوا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، مان لیں ہم نے غلطیاں کی ہیں، ہم نے ایسی غلطیاں کی ہیں کہ فوجی قبضے کو جواز دیا، انا اور تکبر ہمارا مسئلہ بن گیا، غلطیاں مان لیں ورنہ آئین کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، میں بھی حلف کی خلاف ورزی کروں تو میرے خلاف بھی کیس فائل کریں۔ چیف جسٹس نے کہا، بتائیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں غلط کیا ہے، قانون اچھا بنا ہے یا نہیں، ہم پارلیمنٹ کی بے توقیری نہیں کریں گے، سب سے پہلے ہم اللہ کو جواب دیں ہیں، پھر کسی اور کو، ملک میں کئی بار مارشل لا بھی لگے، میں ان ججمنٹ کے تابع نہیں ہوں۔ سر ہمارے چیف جسٹس کی پاورز کلپ کر رہے ہیں۔ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو اپنا وکیل نہیں کیا تھا، شکریہ، اوپر والے کو حساب دینا ہے۔ آپ ہمیں ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو، میں تو بہت خوش ہوں گا، کیونکہ یہ قانون اگر سسٹین ہو جاتا ہے تو میرے پار تو کم ہو گئے، اس قانون کو اڑا دیں میں طاقتور بن جاتا۔ کیا آپ چیف جسٹس کو مکمل طور پر احتساب سے بالا بنانا چاہتے ہیں؟ فل کورٹ سماعت کے دوران چیف جسٹس کا وکیل سے مکالمہ، کہا قانون کو اڑا دیں گے تو میں طاقتور بن جاؤں گا۔ ریکارڈڈ کیس میں ملک کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا اور ہم کہیں چیف جسٹس کی ذات کو نقصان نہ پہنچے، جس سے ملک کو نقصان پہنچے، ایسا اختیار مجھے نہیں چاہیے۔ اس سے بہتر ہے اپنا عہدہ ٹیکس پیئر کے قدموں میں رکھ دوں، ایسا اختیار آپ دینا بھی چاہیں تب بھی نہیں لوں گا۔ چیف جسٹس نے فل کورٹ سے متعلق تمام درخواستیں منظور کر لیں، فریقین کو تحریری معروضات 25 ستمبر تک جمع کرنے کا حکم، مزید سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی۔ چیف جسٹس نے کہا، سینئر ججوں جسٹس سردار طارق اور جسٹس اعجاز الاحسن کی مشاورت سے بینچ قائم کریں گے، اپنے ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ چھوٹے بینچز بنائیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں وفاقی حکومت نے جواب جمع کرا دیا، ایکٹ کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استدعا۔ Can Parliament make a law overriding in relation to the practice and procedure of the court? That rule that Parliament can override judgments of the Supreme Court does not apply. That only either can be done by constitutional amendment or if the court itself revisits that view. کیا ایسا قانون بنانے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اختیارات استعمال کر سکتی ہے؟ فل کورٹ سماعت کے دوران جسٹس منیب اختر کے ریمارکس، کہا پارلیمنٹ کون ہوتی ہے جو کہے 3 ممبر کمیٹی بنے گی، 5 ممبر کیوں نہیں؟ کل پارلیمنٹ بولے فیملی میٹرز پر 5 رکنی بینچ سنے گا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا فل کورٹ کے اختیارات پر قدغن لگانے کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کا خود کو ریگولیٹ کرنا اس کا بنیادی حق ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن بولے، سوال یہ ہے کہ آئین کے تحت ہمارے رولز بنانے کے اختیارات کیا ہیں؟ کیا پارلیمنٹ قانون سازی اور رولز کو اوور رائٹ یا ان میں ترمیم کر سکتی ہے؟ دنیا میں چیف جسٹس نہیں ماسٹر آف دا روسٹر ہے، جب سب جگہ کہیں جائیں تو بیلٹ ہوتا ہے سال کے شروع میں، کہیں ساری فل کورٹ بیٹھتا ہے تو پھر چلتا ہے، کوئی چیف جسٹس کے بعد منجمد نہیں ہے یہ پاورز چلانے کی۔ انڈیپینڈنس تو اس سے بڑھ رہی ہے جوڈیشری کی، انڈیپینڈنس بالکل کنیکٹ مت کیجیے چیف جسٹس کی اومنی پورٹنٹ پاورز کے ساتھ کہ جیسی چیف جسٹس کی پاور کو ہم چھیڑتے ہیں انڈیپینڈنس سے جوڈیشری خطرے میں پڑ جاتی ہے، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ دنیا میں کہیں بھی چیف جسٹس ماسٹر آف دا روسٹر نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس کے ساتھ عدلیہ کی آزادی کو نچھی نہ کریں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے تو عدلیہ کی آزادی بڑھ گئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس، کہا یہی رول سپریم کورٹ بنائے تو درست، پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا تو غلط۔ جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا، کیا آپ تمام اختیارات ایک شخصیت کو دینے کے حامی ہیں؟ ایک شخص بینچز بنائے اور اس طرح فیصلوں پر اثر انداز ہو تو کیا آپ یہی روایتی طریقہ چاہتے ہیں؟ شاید یہی غلطی پارلیمنٹ درست کرنا چاہتی تھی۔ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ ہمارے فیصلوں کو غیر مؤثر بنا دے۔
लेवल प्लेइंग का टास्क आसिफ जरदारी को दिया है। मसला हल ना हुआ तो दरखास्त करूंगा, मेरे हाथ ना बांधें। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी की ओकाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा दोहरा दिया। कहा ऐसा नहीं है कि चेयरमैन पीटीआई को बंद करने से मुल्की मसाइल हल होंगे। एक तरफ मुआशी और सियासी बहरान तो दूसरी तरफ दहशतगर्दी की सूरत में चैलेंजेस का सामना है। रिहाई के अहकामात के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी। अदम पेशी पर आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। लाहौर हाई कोर्ट का आईजी अकबर नासिर खान को गिरफ्तार करने का हुक्म। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के काबिले जमानत वारंट जारी। तौहीन अदालत केस में डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसपी सिक्योरिटी। हाईकोर्ट का तहरीरी जवाब मुस्तरद। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ के मुकदमे में चौधरी परवेज इलाही का जुडिशल रिमांड। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने एंटी करप्शन के मुकदमे में 1 रोज का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। साबिक वजीर आला को एंटी करप्शन पंजाब के हवाले कर दिया गया। दौरान समाअत परवेज इलाही रोस्टम पर आए और कहा मेरी फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई, फैमिली से मुलाकात का मुनासिब ऑर्डर दे दें। इस पर जज अबुल हसनात ने कहा कि जेल वाले भी आपकी फैमिली हैं। जो किसी को पालते हैं, कभी रिहा करते हैं, कभी बंद करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी से मुतालिक सवाल पर हंसते हुए जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा राजा रियाज को नून लीग और मुस्लिम लीग नून को राजा रियाज मुबारक। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मखसूस लोगों को पाला गया, अब वो सब सुल्तानी गवाह बनने को तैयार हैं। पीटीआई के बानी रहनुमा और मारूफ कानूनदान हामिद खान की AY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। बोले चेयरमैन पीटीआई को कहा था भाजपा को भूल जाएं, अदलिया और इलेक्शन कमीशन से भी ना उलझें। पीटीआई सबसे बड़ी जमात है, मुज़ाकरात करना ही पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के बगैर इंतखाबात की कोई साख नहीं होगी। चेयरमैन पीटीआई को 9 मई से कैसा जोड़ा जा सकता है, वो तो गिरफ्तार थे। आरिफ अलवी बेबसी की तस्वीर है, कभी इधर होते हैं कभी उधर। बुकला में कुछ बज़ाहिर हमारे साथ हैं मगर अंदर से नहीं। पीडीएम से नहीं पीटीआई से इत्तेहाद हो सकता है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक की अमरीकी कौंसिल जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। पीटीआई मकबूल जमात है। अमरीका पीटीआई की अवाम में मकबूलियत को कम करना चाहता है तो अवाम की भरपूर माली इमदाद और सरमायाकारी करे। परवेज खटक की अमरीकी कौंसिल जनरल को तजवीज, हम ऐसा मंशूर देंगे कि पीटीआई कारकुन हमें सपोर्ट करेंगे। अदालत और सुप्रीम कोर्ट लोग खुशी से नहीं आते, मसले अपने खत्म करने के लिए आते हैं। तो बराए करम आप ऐसा उनसे सलूक कीजिए जैसे कि एक मेजबान मेहमान से करता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। पुलिस को अपनी जिम्मेदारी दिलजमी से अदा करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के अमले से कहा अदालत लोग खुशी से नहीं आते, अपने मसाइल लेकर आते हैं। साइलिन से ऐसा सलूक रखिए जैसा एक मेजबान अपने मेहमान से करता है। चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल लेने से भी गुरेज, जाती गाड़ी में अदालत पहुंचे। आज हम पेशावर में इस सड़क पर बैठे हैं और कल भी बैठेंगे और परसों भी बैठेंगे और ये तहरीक, ये मुहिम जारी रहेगी। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की धरना तहरीक का आगाज। पेशावर में गवर्नर हाउस के बाहर पंडाल सज गया। सिराजुल हक ने खिताब करते हुए कहा आवाम के लिए जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। भारत चांद पर पहुंच गया, हम आटे और बिजली की तलाश में हैं। निगरां हुकूमत बिजली पेट्रोल की कीमतों में फौरी कमी करे।
हुक्मरानों ने IMF से कर्जे लेकर खुद हड़प किए और बोझ अवाम पर डाला। नाअहल हुक्मरानों ने IPPs से महंगे मुआहदे किए और कमीशन खाया। जमात इस्लामी IPPs मुआहदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उम्मीद है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जुल्म के खात्मे के लिए अदल का तराजू बुलंद करेंगे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। नून लीग के सदर ने एक माह लंदन में कयाम किया। लीगी कायद नवाज शरीफ से सियासी सूरत हाल पर तवील मुशावरत की। शहबाज शरीफ वापस पहुंचकर नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लेंगे। दिगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 5 रोजा दौरे पर आज अमरीका पहुंचेंगे। ट्विटर पैगाम में अनवारुल हक काकड़ ने लिखा, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए पुरजोश हूं। दौरे में माहौलियाती चेंजेस पर बातचीत, आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। बैनुल अक़वामी मीडिया और टॉप थिंक टैंक से भी तबादला ख्याल करूंगा। शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर कर दी गई। वकला ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। शेख रशीद के खिलाफ कोई मुकदमा है न कोई तफ्तीश जारी है। पंजाब पुलिस ने बगैर वारंट गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर रखा हुआ है। अहले खाना की जानिब से राब्ते के बावजूद कुछ नहीं बताया जा रहा। शेख रशीद को अदालत में पेश किया जाए ताकि वो कानूनी हक इस्तेमाल कर सके। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश, ठट्टा और गिरदोनवा में तेज बारिश से मुतादिद दुकानों की छतें उड़ गईं। तेज हवाओं के बायस कई मुकामात पर दरख्त गिर गए। नशेबी इलाके जेर आब आने से चावल की फसल भी शदीद मुतासिर। केंजर, झर, कज्जू, चंपीर और जंगशाही में भी तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। डीजल पेट्रोल महंगा होने के बाद रेलवे ने किराया बढ़ा दिया। पाकिस्तान रेलवे ने किराए में 5% इजाफा कर दिया। इत्तलाक कल होगा। 250 किलोमीटर चलने वाली शटल और पैसेंजर ट्रेनों का किराया नहीं बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कीमतों में कमी न की गई तो गाड़ियां खड़ी कर देंगे। जिम्मेदार निगरां हुकूमत होगी। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की धमकी। किराए में 100% इजाफा न होने पर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में हड़ताल कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के असरात। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 90 पैसे सस्ता 295 रुपए 95 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपए में फरोख्त। करेंसी डीलर्स 290 रुपए में डॉलर खरीद रहे हैं। मुल्क भर में बिजली चोरों की पकड़ धकड़, गिरफ्तारी और जुर्माने। फेस्को रीजन से मजीद 111 बिजली चोर पकड़े गए। 1 करोड़ 10 लाख रुपए का जुर्माना, 2 करोड़ 59 लाख रुपए की रिकवरी। बहावल नगर में 131 बिजली चोर धर लिए गए। छांगा बांगा में नामजद बिजली चोरों का लेस्को टीम पर मुबैना तशद्दुद। 1.5 लाख रुपए और मोबाइल फोन छीन लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। खुम्बर शहदाद कोर्ट में बिजली चोरों के खिलाफ 25 मुकदमात, 32 नादहिंदगान गिरफ्तार कर लिए गए। चीन में नंशिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सेंटर फोरम का इस्तकबालिया। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कन्वेंशन सेंटर पहुंचने पर कम्युनिस्ट पार्टी नंशिया के चेयरमैन और दीगर हुकाम ने मोहसिन नकवी और सरकारी वफ्द का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब 14 करोड़ अफराद का सूबा है जहां तरक्की के बेशुमार मौके मुंतजिर हैं। नंशिया में ताउन और तरक्की के नए रास्ते सामने आएंगे। पंजाब के सरकारी वफ्द की चीन आमद का मकसद मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन से मुलाकात और मौके से फायदा उठाना है। ऑडियो रिकॉर्डिंग में कोई किरदार है न मौजूदा केस में कोई रिकॉर्डिंग की गई है। ऑडियो लीक्स केस में वजारत दिफा का इस्लामाबाद हाईकोर्ट को जवाब। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवालात उठाए। मुल्क की कौन सी एजेंसी कॉल्स रिकॉर्ड करती हैं?
वजीर आजम ऑफिस की रिकॉर्डिंग किसने कराई? हुकूमत जवाब दे वरना इंटेलिजेंस एजेंसियों को बराह रास्त फरीक बनाएंगे। हसास इदारों से जवाब तलब करेंगे। अदालत ने वजारत दाखिला और पीटीए के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए दोबारा तफसीली जवाब मांग लिया। बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजमुल साकिब की दरख्वास्त पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। नजमुल साकिब की कायमा कमेटी तलबी के समन मुअत्तल करने के हुक्म में 1 माह की तौसी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। वकील सलमान सफदर की जानिब समाअत जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। एक प्रोसीजर के तहत मामलात चलते हैं। आप सीनियर काउंसिल हैं, अदालती तरीकाकार को जानते हैं। फरीकैन को 25 सितंबर के लिए नोटिस जारी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में चेयरमैन पीटीआई के बेटों से बात करवाने से मुतालिक केस। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल से रिपोर्ट तलब कर ली। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस मफरूर मुलजिम हमाद सिद्दीकी को पाकिस्तान वापस लाने का मामला तलबी के बावजूद विफाकी सेक्रेटरी दाखिला, आईजी सिंध और होम सेक्रेटरी पेश न हुए। सिंध हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए। 259 अफराद जान से गए, किसी को इसका एहसास ही नहीं। वजारत दाखिला की कारकर्दगी बहुत नाकिस है, बल्कि गफलत के मुर्तकिब हुए हैं। समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। फातिमा कत्ल केस में बड़ी कार्रवाई। रानीपुर दरगाह के गद्दी नशीन पीर सूरज दस्तगीर के भाई शाहजेब शाह गिरफ्तार। पुलिस का कहना है शाहजेब शाह को मुलजिमा हिना शाह और फयाज शाह की मालूमात हासिल करने के लिए हिरासत में लिया है। मजीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। कराची के इलाके डिफेंस से बाजियाब घरेलू मुलाजमा का केस। पुलिस का कहना है 13 साल की वजीहा जिस घर से बाजियाब हुई वो सरकारी अफसर का है, जो तफ्तीशी अफसर और मुतासरा खानदान पर दबाव डाल रहा है। वजीहा ने अपने बयान में कहा वो अपनी सहेली का पूछने गई थी। शायान ने बहाने से अंदर बुलाया और कमरे में ले गया। शोर मचाने पर मारने की धमकी दी। शायान गैर इखलाकी हरकतें करता था। इस्लामाबाद के सिनारी गांव में अराजी का कब्जा छुड़ाने के दौरान मुश्तइल अफराद का पुलिस पर हमला। 3 डीएसपी समेत 11 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस का कहना है एक इंस्पेक्टर को गोली लगी, दीगर पथराव से जख्मी हुए। अमरीकी सदर जो बाइडेन के खिलाफ मौकसे की इंक्वायरी शुरू। ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैकार्थी के हुक्म पर इंक्वायरी को बाइडेन ने खुशाइन करार दिया। रिपब्लिकन पार्टी ने दावा किया है कि सदर बाइडेन और उनकी फैमिली के गैर कानूनी कामों में मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल। एशिया कप में नाकामी के बावजूद स्क्वाड में ज्यादा तब्दीलियां न होने का इम्कान। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक और कप्तान बाबर आजम आज चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात करेंगे। मेगा इवेंट के लिए स्क्वाड का ऐलान चंद रोज में कर दिया जाएगा। नसीम शाह की जगह जमान खान की शमूलियत यकीनी। साउथ शकील और लेग स्पिनर अबरार अहमद को शामिल किए जाने का इम्कान। कप्तान की कोई गलती नहीं तो साबिक कप्तान मौजूदा कप्तान बाबर आजम के हक में बोल पड़े। लेजेंडरी जावेद मियादाद कहते हैं जब टीम ही कुछ ना कर सके तो कप्तान की क्या गलती है। साबिक कप्तान जावेद मियादाद कहते हैं वर्ल्ड कप करीब है, गलतियों से सीखना होगा। साबिक कप्तान मिसबाह हक बोले सिर्फ बाबर आजम को निशाना बनाना दुरुस्त नहीं, 228 रन अकेले कप्तान ने नहीं बनाने थे। कारकर्दगी में उतार चढ़ाव आ जाता है। पाकिस्तान ऐसे हालात से निकलना अच्छी तरह जानता है। मराकश के ज़लज़ला और लीबिया के सैलाब ज़दगान से इजहार यकजहती। स्पेन की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग ला लिगा में 1 मिनट खामोशी इख्तियार की गई। खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और मद्दाहों ने खड़े होकर
قدرتی آفات کا نشانہ بننے والوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ اور رونالڈو کی فری کک نے کیمرہ مین کے 14 طبق روشن کر دیے۔ گول پوسٹ کے بجائے گیند سیدھی کیمرہ مین کے ماتھے پر جا لگی۔ کک کی شدت سے کیمرہ مین کا ماتھا سوج گیا۔